Good morning, students. You are very big students because you are students of class 10th, है and you have examination also. These younger students like first, second, third, fourth do not have fear of exam, but your exam will be there, and everyone will have the examination. Everyone will have to study, and study we do for our mental and educational development. Okay, so today we are going to study the poem, which is first poem of your unit 1. The title is Where the Mind is Without Fear. This poem is written by the legendary poet Rabindranath Tagore, the great poet Rabindranath Tagore, who is Nobel laureate. He received Nobel Prize. He was the first Indian non-European. He was the first non-European to win this prize for his that anthology. Anthology, do you understand? Anthology is collection of poems that was Gitanjali in 1913. Okay, and this poem, Where the Mind is Without Fear, is also one of the masterpiece of his collection. Okay, so we will study this. Actually, Tagore, to whom we known as Gurudev, he lived in the country in India which was ruled over by the British, and at that time our country was slave of British. Okay, so there was no political freedom, and that's why poet appeals here for the freedom of his countryman, economic, social freedom. Okay, so the title of the poem is Where the Mind is Without Fear, जहाँ पर दिमाग जो है वो बिना डर के हो. Where the mind is without fear and head is held high, मतलब जहाँ पर हमारा दिमाग जो है वो निडर हो, और हेड जो है, हेड मतलब सिर जो है वो तना हुआ हो स्वाभिमान से. ठीक है, मतलब वो किसी के सामने झुका ना हो, किसी का गुलाम ना हो, जहाँ पर दिल में और दिमाग में कोई डर ना हो. ठीक है, वेयर द नॉलेज इज फ्री. कभी को एक ऐसे देश की आशा है, अपने देश के लिए वो क्या उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर नॉलेज फ्री हो, वहाँ पर किसी तरह की सोशल बाइंडिंग ना हो कि नॉलेज इज अवेलेबल फॉर दिस सेक्शन एंड नॉलेज इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. नो, he wants knowledge free to all sections of the society. Knowledge must be freely available to all. Where the world has not been broken up into fragments. World means ये दुनिया जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटी ना हो. There means narrow borders ना हो. दुनिया एक बहुत बड़ा क्या हो, एक फैमिली हो. ठीक है, fragments means टुकड़े. You have to know the difficult words with their Hindi meanings in your notebook. Okay, students? So, the hard words. First, fragments. Fragments means tukade. Where the world has not been broken up into fragments, जहाँ पर दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बटी ना हो, by narrow domestic walls, जहाँ पर बहुत संकीर्ण विचारधारा ना हो, संकीर्ण विचारों की दीवारें खड़ी ना हो एक दूसरे के बीच में. Where words come out from the depth of truth, जहाँ पर जो भी कहा जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, वो दिल की गहराई से बोला जा रहा हो, सच पर आधारित हो. Where tireless striving stretches its arms, जहाँ पर कंटिन्यूअस एफर्ट्स किए जा रहे हो, लगातार संघर्ष किया जा रहा हो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए. टुवर्ड्स परफेक्शन मतलब हमारे ध्येय की प्राप्ति के लिए हर कोई कार्यरत हो, हर कोई संघर्ष कर रहा हो. Where the clear stream of reason had not lost its way. Clear stream means विचारधारा, स्वच्छ विचारधारा, rational thinking, logical thinking. जहाँ पर रैशनल थिंकिंग हो, लोग
लोगों के दिलो दिमाग जो है वो सुविचारों से भरे हो, उनके विचार लॉजिकल हो, तर्क संगत हो, और ये जो क्लियर स्ट्रीम है वो विचारों की, जो सही विचारों की जो प्रवाह धारा है वो अपना रास्ता कहीं न खोए। इसका मतलब ऐसे विचारों से, मतलब समाज ऐसे विचारों से ओतप्रोत हो जहां पर लोग तर्क संगत सोचते हो और रैशनल थिंकिंग है जिनकी। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट स्टैंड ऑफ डेड हैबिट। हमारा समाज जो है आजादी के पहले ही कैसा था, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, इवन इंटरनल सोसाइटी के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, उच्च नीच के विचारधारा में, डिस्क्रिमिनेशन में, सोशल डिस्क्रिमिनेशन में बटा हुआ था। बहुत सारी ओल्ड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग समाज में डेवलप थी, सुपरस्टिशंस थे, रिच एंड पुअर, लो एंड हाई, सब इतना सारा असमानताएं थी समाज में। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी इन सारी विचारधाराओं को, कुरीतियों को डेड हैबिट्स कहते हैं। ये डेड हैबिट्स समाप्त हो जाए ऐसी उनकी इच्छा है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, ये दी जो है यहाँ पर दी, ये ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। दी का मतलब होता है योर, मतलब तुम्हारा। ये गॉड के लिए आया है ये वर्ड। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहां पर लोगों के दिलो दिमाग जो है उनको वो भगवान, मतलब ऑलमाइटी जो गॉड है, वो उनको उनका मार्गदर्शन करे। इनटू एवर वाइडिंग थॉट्स एंड एक्शंस, कैसे विचार हो लोगों के, हमेशा विस्तृत चौड़े रास्ते से होकर गुजरने वाले, लिबरल थिंकिंग हो, संकीर्ण मनोवृत्ति ना हो, सोच लोगों की कैसी हो, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की हो, ना कि संकीर्ण मनोवृत्ति की तू मैं बड़ा तू छोटा, ऐसी संकीर्ण मनोवृत्ति किसी की ना हो। और कभी, चूंकि ये कविता उस समय की कंपोज की गई है जिस समय हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल था, तो कवि क्या चाहते हैं, अपनी कंट्री के लिए फ्रीडम चाहते हैं और वो गॉड से बोलते हैं, अलमाइटी से बोलते हैं कि मेरे देश को जब आजादी मिलेगी, उस मतलब वो स्वर्ग रूपी आजादी मेरे देश को मिले, जहां पर मेरा हर एक जो मेरा जो देश है वो जागृत हो, वो आजाद हो और यहाँ के लोग भी हैं वो जागृत रहे। ठीक है, सो ये कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पर दिमाग जो है वो डर के बिना हो और सिर जो है वो गर्व से ऊंचा हो, अपने देश के प्रति गर्व से ऊंचा हो, जहां पर नॉलेज जो है वो फ्री है सभी के लिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जात का हो या नीची जात का हो, ये उन सभी के लिए नॉलेज जो है वो फ्री है। ज्ञान की गंगा सभी के लिए बिल्कुल सहजता से उपलब्ध हो। Where the world has not been broken up into fragments, जहाँ पर दुनिया जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब उनकी सोच विचारधारा ऐसी छोटी ना हो, जहाँ पर, ठीक है, तो ये सारे आपको समझना है, बार बार पढ़ना है। पोएम जब आप समझेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो आपको उसके वर्ड्स के मीनिंग समझते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो मीनिंग्स दिए हुए हैं नीचे बॉटम पर, वो मीनिंग्स आपको नोट डाउन करना है। जब आप मीनिंग्स नोट डाउन करेंगे तो जो हार्ड वर्ड्स है उनके मीनिंग समझेंगे तो सेंटेंसेस आपको बराबर समझ में आते जाएंगे। दिस थर्ड इज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। Narrow domestic walls means divisions on the basis of religion, caste, etc. Fourth, tireless striving, S-T-R-I-V-I-N-G, tireless striving means continuous efforts. Continuous efforts
rituals. Rituals means प्रथा परंपरा या रीति रिवाज. ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको करना है, इन वर्ड्स की मीनिंग समझना है, और बुक पे भी आपको जितने हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उनके भी मीनिंग्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है. ठीक है, तो आज का होमवर्क नोट कीजिए. Write the poem where the mind is without fear, where the mind without fear, where the mind without fear, and find the meanings of hard words. Okay students, so you have to write this poem in your notebook along with some information of the poet Rabindranath Tagore ji, and then you will find the meanings of difficult words and then you will learn them. Next, what we have to do, what kind of figures of speech is there in the poem, or what activities are there in the textbook of this poem, we will see that all in next period. Okay, so we will meet soon. Bye for now.